That's also very simple, and but when we calculate that mode only. So that's the important. Suppose if we have the nominal data, then rather than just only the nominal that mode, we can't find the mean, because mean is depending on totally on the numerical data only. Like same thing, the median. Okay. So median, broadly median, with what we do with the median, that is it will divide our data set in two equal parts. So after median there is some positional, it's, we say that this is the positional average. It will give you the position about the data, how 50% below and 50% the above only. So but there are some other positional measures also is there, like quartile deviation, quartiles, deciles, percentiles. So they are all the positional averages. In quartiles we calculate it, quartiles we divide our data in four equal parts. So suppose whenever we want like this types of the things only, we go to the quartile. Decile, it will divide our data in 10 equal parts. Percentile, mostly you see that the scores like now JE score or whatever the score, they give the now percentiles. So percentile, this means they are dividing your data in equal 100 parts. But same procedure for whatever the median, we go for the quartiles, deciles, percentiles, whatever. But it's what the, it's have the median have the that superiority above the mean is that it's not affected by the extreme values. Suppose after arranging the data, like I have the data 1 2 3 4 5 6, okay, and now I have added 1 0 that lower side, and I have added 20 upper side. What is, so after arranging the data, then if there is whatever the value we are adding both side, but it's the equal values only. If one value is lower side, one value is upper side, the median will always the same only. So lower middle values 50% the above the median values only. Like features in our botany, yeah, where they write, I think that minimum they write, maximum range, suppose some feature of measurement, and then they write something in bold, giving in hyphen. So what it comes under mean, and the central position would be no idea. I don't think getting that one only, but sometimes suppose we are making like they say that box plot. So in box plot they have the three things only, that like they divide the data in quartiles, first quartile, the third quartile, and the middle value is the median values. Except that one values, they have say that this is the outlier sometimes only. So if you see that box plot, then some box plot they give the mean value, some box plot they give the median value. It's depending upon the data, what type of the data, for that data we are making the box plot. If we are making the box plot for the qualitative types of data, then maybe mostly we'll take the median values. If it is the numerical values there, then numerical data, then we maybe they give the mean values. So as I told you that measure of dispersion, it will give you mostly the aggregated value, and it will tell you the middle point of your data set. Except this, it will not give you any other thing. Suppose two data set have the same mean values, so you can't say that the both the data set have same dispersions or their consistency is the same based on the mean values, because numbers, by adjusting some this type of one or two or something numbers only, but mean is coming the same, but we can't say that the both the data set are the consistent same like or not. So for that purpose, to see the variation from the mean values for the data, we go for the dispersions. So there are the different methods for calculating dispersions. Very first is the range. If we calculate, we are able to calculate the range, so we can say that in which range the data is lying only. So range is very basic, and that is the just only lower and upper limit difference between the lower and upper limit only. Then usually combinations with the measures of the dispersion, others mostly we use, that is the, there is some examples you can see here, like this you are telling something here. So see, if you this one is say that this is a box plot. Okay, so in the box plot, this we will give the median values or mean values. This depending upon the what type of the data we are having. This side and this 13 and 58 is the
range value, that is lower limit and upper limit. Then 19 and 25, that is the quartile range only, that is interquartiles, we say the interquartile, first interquartile 25 fifth percentile or quartiles, and that is the third, that is the 75th quartiles or values only. Okay, so mostly it's depending upon your data what middle value, that is the 22 is this, it's maybe the median, it's maybe the mean. Variance, mostly we use the variance or standard deviation for the measuring the dispersions or standard error. So how we calculate the variances, just we see the deviations from the mean values and then we square that values, and that is our deviations, square deviations from the mean values only. Okay, and what the meaning after getting the high variance means that the most score are far from away mean values compared to the low variance indicate the most scores clusterly tightly about the mean values. So all the measure of dispersion, we are, our targeted is to find out this thing only, the data how is clustered about the mean only. Okay, the amount that one score differ from the mean is called the deviation scores, and then some, that is the sum of square and all these things only. Okay, so next one is the standard deviation. I will ask you something here only, like it is the square root of the variances. So if we have calculated the variance, then why we are going for the standard deviation? Why need to standard deviation if we have variances? No idea? Any? प्लस तो प्लस में होगा तभी स्टैंडर्ड डिविएशन भी प्लस में होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन तो स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंसेस है, सही है। बट अगर हमने वेरिएंस निकाला है तो हम स्टैंडर्ड डिविएशन को क्यों निकालेंगे? और ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस दे हैव द मीन एंड वेरिएंसेस, दे नेवर से द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, बट all the statistical inferences whatever we applied the test, we use the standard deviation. So if we have the variance, then why we go for the standard? वेरिएंस का मीन नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो इसमें हम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे हैं, है ना। देखिए थिंग इज दैट, अगर हमने कोई हमारा वेरिएबल है और जो मीटर में है तो हम वेरिएंस करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिविएशंस का स्क्वायर करते हैं। डिविएशंस लिया हमने, डिविएशन का स्क्वायर किया तो उसका यूनिट का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा कि मीटर स्क्वायर हो गया। आपका ओरिजिनल डेटा मीटर्स में था, वेरिएंस मीटर स्क्वायर में हो गया, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको। तो ओरिजिनल डेटा की यूनिट को हमको फाइंड करने के लिए हमको क्या करते हैं, हम वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन करते हैं, बट अदरवाइज बोथ दे हैव द डिविएशंस ओनली, जस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ दैट वन ओनली। सो जो यूनिट हमारी हो रही है वो उसका भी स्क्वायर हो जा रहा है ना, मीटर स्क्वायर हो जा रहा है या किलोमीटर स्क्वायर हो जा रहा है या लीटर स्क्वायर हो जा रहा है, तो उसको ओरिजिनल से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि डिविएशंस जो वेरिएशन हमको देखना है वो कहां देखना है, ओरिजिनल डेटा के अंदर देखना है। ओके, सो यहां पे लिखा हुआ भी है एक्सप्रेस द इन ओरिजिनल यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट ओनली। फिर इसके बाद में एक चीज है जो कि स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्क्यूनेस हमको क्या बताता है, व्हाई वी नीड द स्क्यूनेस? See, when we are not able to conclude our things by using the mean deviations, mean, median, mode, then we go for the dispersions। यानी कि जब हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से काम नहीं चल रहा तो हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में गए। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन से भी हमको कुछ नहीं लैकिंग है तो हम कहाँ जा रहे हैं, स्क्यूनेस पे। स्क्यूनेस पे क्या, स्क्यूनेस हमको क्या बताएगा कि सिमेट्रीनेस बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, जो भी हमारा डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। सिमेट्रिकल से मतलब है कि हमारा मीन मीडियन मोड जो है कॉन्साइड कर रहा है या नहीं कर रहा है।
सही है। जब भी हम अभी हम जब इन्फ्रेंशियल पार्ट में जाएंगे तो वहां पे क्या होगा कि हमको कोई भी टेस्ट अप्लाई करने से पहले पैरामीट्रिक टेस्ट हम देखेंगे, हमको कंडीशंस रहेंगी, कुछ एजम्पशंस रहेंगी, जैसे कि नॉर्मलिटी कंडीशंस होल्ड करना चाहिए। तो नॉर्मलिटी कंडीशंस को चेक करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें से एक सबसे सिंपल मेथड है क्या, कि हम देखें कि अगर हमारे मीन मीडियन मोड इक्वल है या नहीं है। तो हम जो बेसिक एक बोल लगा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वहीं से हमको पता चल जाएगा कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, यानी कि डेटा हमारा सिमेट्रिकल है या नहीं है। सही है। तो फर्दर बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें एक यूज है सबसे ज्यादा स्क्यूनेस। अगर सपोज करिए कि अगर डेटा हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, वी डोंट हैव द सिमेट्रिकल डेटा, देन व्हाट टाइप ऑफ द डेटा इज, तो उसको फिर हम कहेंगे स्क्यूड, यानी एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा। अगर एसिमेट्रिकल डेटा है हमारा तो वो कहलाएगा स्क्यूड डेटा। अब स्क्यूड में भी क्या होगा कि किस टाइप का है, पॉजिटिव स्क्यूड है या फिर निगेटिव स्क्यूड है। सही है। एक मेजरमेंट्स किया था हमने फीचर का ही ऐसे, उसमें पूरी रेंज थी और वो कंप्यूटर जनरेटेड मेजरमेंट आया था। उसमें मीन और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डिविएशन और उसके बाद उन्होंने स्क्यूनेस किया। तो स्क्यूनेस में हम सिर्फ स्क्यूनेस को देख के हम आगे की एनालिसिस के लिए प्रोसीड कर जाएंगे। हाँ, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, स्क्यूनेस हमको बता देगा इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम सिर्फ मीन और एसडी रख लें, स्क्यूनेस छोड़ दें, या नहीं, मी स्क्यूनेस जो हमको अगर जिसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें क्या है, तीनों मेजर्स डिफाइंड होते हैं, मीन मीडियन के बीच रिलेशनशिप से भी और स्टैंडर्ड डिविएशन के, उससे भी हमारा स्क्यूनेस निकल जाएगा। मीन और मोड के और डिवाइड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन से भी हमारा स्क्यूनेस निकल आएगा। सही है। उसके बहुत सारे और क्वार्टाइल बेस्ड भी हमारा स्क्यूनेस का फार्मूला है। सही है। और सिंपल हमको क्या करना है, अगर हमको स्क्यूनेस देखना है तो सिंपली हम कुछ ना अगर फार्मूला लगाएं क्योंकि फार्मूला हमको क्या देंगे, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यूज दे देंगे। सही है, कि वो कितना स्क्यूड है किस पॉइंट में, क्योंकि जीरो अगर है तो देयर इज नो स्क्यूड, मींस मीन मीडियन मोड कोइंसाइड। अब जैसे जैसे जीरो से बढ़ता जाएगा स्क्यूनेस वहां पे ज्यादा होता जाएगा। सही है। तो वो हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे। ग्राफिकली हमको कैसे पता चल जाएगा, ग्राफिकली अगर हमने किसी डेटा को प्लॉट किया, यानी कि हम डेटा का हिस्टोग्राम बनाए और हिस्टोग्राम जो है हमारा पीक जाने के बाद में सडनली उसी पैटर्न में अगर डाउन आता है तो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद उससे पहले किया गया है, अगर हमने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया हुआ है, यानी किसी भी डेटा का अगर हमने समरी किया हुआ है तो समरी में हमने मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज देगा, मीडियन वैल्यूज देगा, मीन वैल्यूज देगा, मोड वैल्यूज दे देगा। तो वहां से भी देख के हम पता लगा सकते हैं कि हमारा डेटा सिमेट्रिकल है या नहीं है। सही है। जब हम रिजल्ट लिखेंगे यहाँ पे तो हम भले ही मीन और एसडी से हमने अपना लाइन एक्सप्लेन कर लिया, और ग्राफ में हम स्क्यूनेस दिखा के कर सकते हैं। बस सिंपल हमको हिस्टोग्राम प्लॉट कर लीजिए, सिंपल हिस्टोग्राम प्लॉट कर लीजिए, हिस्टोग्राम आपको बता देगा। क्योंकि जैसे क्या अगर कोई मीन है समझ करिए 100, 100, 102, 103 अगर है तो हम उसको फिर क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे कि भाई 100 के आसपास ही है तो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। एग्जैक्टली सिमेट्रिकल या एग्जैक्टली नॉर्मल तो जब होगा जब तीनों एग्जैक्टली बराबर हो, बट नियर टू आर नॉर्मली कि कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे पॉइंट में या एक नंबर से दो नंबर पे ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो हम उसको भी, तो ग्राफिकली वो आपको बता देगा। रफ आइडिया जो है आपको एक हिस्टोग्राम अगर आप प्लॉट करेंगे वहां से आपको मिल जाएगा कि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। सही है। जैसे अगर ये देखिए डेटा हमारा कुछ इस तरीके से है तो ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। सही है। तो ये नहीं कि एक नॉर्मल कर्व का, अगर जो नॉर्मल कर्व होता है इस तरीके से हमारा, उसका इस साइड का हिस्सा राइट साइड का। सही है। अगर हमारा कुछ डेटा इस तरीके से है तो हम इसको कहेंगे निगेटिवली स्क्यूड डेटा। सही है। तो अगर जैसे क्या है कि हमारे उसमें जो है जीरो से स्टार्टिंग होकर उस कम है और टेल जो है इधर लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा है तो हमारा निगेटिव स्क्यूड डेटा होगा। तो इस तरीके से डेटा प्लॉटिंग से हमको बहुत आसानी से इस चीजें पता चल जाएंगी। So after getting the descriptive analysis, what we can do? Okay, like descriptive statistics are used to summarize data for individual respondent. They help to make sense of large number of individual responses to communicate the essence of those response to the others. They focus on typical on average scores, dispersion scores over the available responses, and the shape of the response curves like skewness.
तो इस इतना कुछ हम जो है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर भी कर सकते हैं, जो हमारी बेसिक एनालिसिस के लिए काफी है। ओके, they will give you the idea what type of the analysis you can go. Suppose if you want to perform any statistical in parametric test, but your data is not normally distributed, then what we do? Then we go for the some smoothing methods, or we can go that transformation, log transformation, back transformation, whatever the transformation we do, but we will try to make our data as a normally distributed data. Okay, and then we will perform the analysis only. So in the descriptive statistics, if you anyone any questions or anything, second part will start like principal component analysis. I try my level best to catch the numericals. I found some numericals, but most of the numericals have the very large data set. So I try, but I try to give you some graphically how the things are going inside the principal component analysis. Okay. So here, if any questions from the descriptive analysis, you can ask, otherwise we go for further. Okay. Descriptive analysis also, sometimes we have two groups. Uh, Usually in trials, but we do group 1, group 2. So we want to show that, okay, in descriptive analysis also, whether there is a difference among these two groups. Then again we have to do the inferential statistics for that also. For that we go for the coefficient of variation. Like suppose if we want to, we have the two series of the data, or we can say that I have the two team data. Okay, and I want to see which team is the consistent, more consistent, suppose in players. Okay, so we can see the coefficient of variation in between two series only, two series data. Suppose in between two samples, both the samples have 10 values, and just we want to see that which sample is more consistent or uniform, so we can calculate the coefficient of variation. Okay, that is the part, also the part of the dispersion. It is called the coefficient of variation. So in the coefficient of variation we find the mean, standard deviation, and just only two things we have to find out. Because sometimes, for example, sir, we have age. Yeah. Okay, so median age we have written for group A or group B. Okay, But they will ask the p value for that also. So that is the analysis part only. that becomes That is analysis. That's the analysis part only. That is the you, because you have the individual patient age only. Median also is there, but individual patient age is there too, so you can perform the analysis upon that one only. Okay, they will give the p values or all the things only. That's not a problem only. Okay. In principal component analysis, we try some questions to find out the answers for that one. Like suppose, what is the principal component analysis? Why is PC important? And how does principal component analysis work? So the last question is like totally that analysis part only. What are the steps involved? How many steps we have to follow? So in there some mathematical also is there, but I am not covering that mathematics here only. So first thing is that principal component analysis. What is the principal PCA? Okay, so it is a statistical technique to reduce the dimensionality of complex, highly valued data set by extracting the principal components that contain the most information, rejecting the noise or less important data while preserving all the crucial details. So the basically in principal component analysis, we want to reduce our some variables, means dimension means suppose 3 dimension, we can do 2 in 2 or 1 only, 10 or 20 something only. So how, which variables are our effective variables? So suppose I told you study something that like how we remove the variables, some variable, or how we find the important variables. So the PC will also will give us to that how we that important variables are there only, which variables are the important variables by using the principal component analysis. So we see that PCs there, sometimes they take 20 PCs are there, but out of 20 PCs only 2 or 3 PCs are there, say that this concluding the 80% or 95% total variation, so we'll take 2 PCs only. Okay, so PC is designed to limit the total quality of variable in a data set while maintaining as many details as possible. Okay,
So those new features we are converting, or with those PCs are we are saying that PC, that is the personal components. Once PC has been performed, the number of PCs is the same as or lesser than the number of original features. So features means that columns, whenever we entering the data, that's the columns only, and that rows, that individual numbers only in the data set. The principal component must correspond to the linear argument of the initial values. So एक्चुअली जो पीसीज होंगे हमारे, वो भी जो जितने भी पीसीज पर्सनल कंपोनेंट एनालिसिस, जो भी हम नया फीचर्स बना रहे हैं या नया वेरिएबल्स जो हम बना रहे हैं, वो लीनियर कॉम्बिनेशंस में होंगे ओरिजिनल वेरिएबल्स के, मैथमेटिकल्स में. सही है. फिर द करेक्टर ऑफ दीज कंपोनेंट इज ऑर्थोगोनल. सो व्हाई वी दिस इज द ऑर्थोगोनल, बिकॉज वी वांट टू रिमूव द कोलिनियरिटी बिटवीन द वेरिएबल्स ओनली. ओके. So this indicates that there is no relationship between pair of variables. From 1 to n, the significance of each component, and this means that indicate that the number of PC is the most important, while the number of n PC is the least important. So when we arrange the PCs in the ascending or ascending orders, means largest is the first only, and so first we put in the first as a PC, first PC as a which have the largest values only, and last one is the lowest values only. Okay. Why this is the important only? So the quantity of the data mandatory for obtaining a statistically significant outcomes rises exponentially at the total number of features or parameters in a data set increases. Okay, so this may result in the problem like overfitting, a spike in the computation of time. This is called the crucial of the dimensionality, and the happens when the interacting with the high dimension data. So whenever we have the more dimensions data, means more number of columns we have, so there is the, when we or we want to perform the regression analysis or any other analysis, so it's see that there is a more complexity is there. Okay. And how we remove this are the, so to reduce the density there are the two methods. One is called the feature elimination, another is the feature extraction. So in feature elimination means just we eliminate our or remove our columns only. By some methods we find out that these columns are not significantly sufficient, or it's not converting more only, so we can delete that one only. So remove the some features directly. Okay. So if we remove the directly some features only, then what the advantage and what the disadvantage of this one? Advantage of the feature elimination method include the simplicity and maintaining the interpretability of the variables, but disadvantage is that we gain no information from those variables who we dropped only. So but in feature extraction, keep the important fractions of all features, create new features where each new feature is a combination of each of the old features only. So अगर हमारे पास 10 वेरिएबल है, हमने 10 न्यू वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया, और जो हर एक वेरिएबल्स होगा वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशंस में होगा पुराने वाले वेरिएबल्स के साथ में. यानी कि जो PC1 सपोज करिए PC1 होगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 10 होगा, PC2 क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 10 होगा. तो अगर हमारे पास 10 वेरिएबल है, 10 हमने PC बना लिए, तो फिर वही बात हो जाती है. फिर why might we say that where does the density reduction come into play? तो 10 थे, 10 हमने फिर से नया बना लिए, तो कुछ रिडक्शन तो हुआ नहीं है ना. तो उसके लिए उसी को आंसर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्सनल कंपोनेंट एनालिसिस कर रहे हैं. सही है. बाय कीपिंग एज मेनी ऑफ न्यू फीचर्स वी वांट, बट वी ड्रॉप द लीस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ओनली. ओके. सो 10 पीसीज न्यू पीसीज हमारे पास आएंगे, न्यू फीचर्स वेरिएबल्स आएंगे, उसमें से हम देखेंगे कितने वेरिएबल्स जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए. सिंपल सा ये एक आइडिया है, बस इतना सा. ओके. And when should we use the principal component analysis? So do you want to reduce the number of variables but are not able to identify variable to completely remove from the considerations? Do you want to ensure your variables are independent of one another? Are you comfortable keeping your independent variable less interpretable? अगर ये हमारे क्वेश्चंस हैं तो हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को यूज कर सकते हैं. अदरवाइज इसमें भी खासतौर से 3 है, अगर इनमें से कोई एक में के लिए लास्ट सपोज के अगर तीसरे के लिए आपका आंसर अगर नो है तो फिर आप पीसी आप यूज मत करिए. सही है. तो इसमें अगर तीनों का यस है तो आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए आप जाइएगा. सही है. और उसके लिए फिर कैसे हमको, तो इसका एक ओवरऑल डेफिनेशंस भी फिर वही निकल के आ जाता है.
इंडिपेंडेंट तो सर बहुत सारे, क्योंकि हमको क्या करना है, मल्टी कोरिलेटिव अगर है, यानी कि दोनों अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उनके बीच में कोरिलेशनशिप जो है, कोरिलेशन ज्यादा होगा, तो हमको तो वही वेरिएबल लेना है जो पहले के इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम क्या क्या है कि जो हम नया फीचर्स बना रहे हैं, वो जो नया फीचर, जो नया वेरिएबल जो बना रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट कह रहे हैं, तो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट हम नए बना रहे हैं हर एक का लीनियर कॉम्बिनेशन लेके, वो क्या होंगे, जो नए फीचर्स हमारे होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के, यानी कि वो जो है परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के लिए, तो उसमें क्या है, कोई भी रिलेशनशिप होगा ही नहीं। तो सबसे पहले कि मल्टी कोनलिटी, जब भी हमारे पास ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, मल्टी कोनलिटी की प्रॉब्लम्स ज्यादा होगी, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि न्यू वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशंस में है ओल्ड वेरिएबल के, और वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल्स हैं, यानी कि परपेंडिकुलर्स हैं, जिसके बीच में कोई भी कोरिलेशन होगा नहीं, यानी टोटली इंडिपेंडेंट है। तो जो नए इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, वो नए फीचर्स हैं, ओल्ड है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है हमको नहीं पता, बट जो हम नए फीचर्स बना रहे हैं, नए वेरिएबल्स बना रहे हैं, वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। उसका सबसे पीसी का प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस सबसे पहला तो यही कॉन्सेप्ट होना हो रहा है, सही है। पहले वाला कंडीशनल स्लाइड एक बार फिर से। Okay. So if you see that again, the principal component analysis is a dimensionality reduction that identifies important relationship in our data, transform the existing data based on these relationship, and that then quantify the importance of these relationships, so we can keep the most important relationship and drop the others one only. Okay, so to remember this definition, we break down the some 4 steps. Like first we have to identify relationship among features through a covariance matrix. So covariance matrix जो मैथमेटिकली हम बनाएंगे एक, see mainly relationship between variable within the variables only. Okay, like एक वेरिएबल है उसके साथ में दूसरे वेरिएबल की रिलेशनशिप क्या है, अगर दोनों सेम वेरिएबल लेंगे तो कोवेरियंस मैट्रिक्स में आपने देखा हो, जो डायगोनल एलिमेंट होता है जिसको हम वेरिएंस कहते हैं, जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं जो दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनको हम कोवेरियंसेस कहते हैं। कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड जेड, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड x2, कुछ भी इस तरीके से, सही है। तो जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमारा वेरिएंसेस का होगा। थ्रू द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइगन डिकम्पोजिशन of the covariance matrix we get the eigen vectors and eigen values। तो ये मैथमेटिकल पूरा इस तरीके के टर्म्स हैं जो अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो इस तरीके से eigen values and eigen vectors होंगे। then we transfer our data using eigen vectors into principal component। तो जो हमको eigen vectors मिलेंगे उससे जो है अपने डेटा को कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो मैं भी आगे दिखाऊंगा। lastly we quantify the importance of these relationship using eigen values and keep the important principal components। okay, सो जो हमारे 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे, फीचर्स ऑफ इनटू द पीसी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर कीप इंपॉर्टेंट पीसीज बेस्ड ऑन द आइगन वैल्यूज करेंगे। तो अगर हमारा कोई डेटा है जिसका डायमेंशन m/n का है, तो कोवेरियंस मैट्रिक्स के जरिए हम उसको क्या करेंगे, n/n क्रॉस का मैट्रिक्स बनाएंगे पहले। वो मैट्रिक्स के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फीचर डेटा इनटू ए सिंगल रो में जिसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। फिर ये पूरा ये मैथमेटिकली है, इसका अगर आप डेरिवेशन से करेंगे तो पूरा मैथमेटिकली है, बट ये सब सारा काम जो सॉफ्टवेयर अपने आप ही करके देगा, हमको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं बहुत सारा डेटा सर्च कर रहा था जो छोटा डेटा हो और सॉफ्टवेयर ही करा हो, तो मुझे कहीं मिला नहीं ऐसा ज्यादा, बट कुछ 1-2 वीडियोज मुझको ऐसे मिले जहां पर उन्होंने इस तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ था, सही। तो वो मैंने कुछ उसको रखने की कोशिश की है। सॉफ्टवेयर तो आप कोई भी यूज करें, हर सॉफ्टवेयर का एक ही, मैंने किसी सॉफ्टवेयर का नहीं है ये दिया हुआ। अगर आप उसमें भी करेंगे, SPSS में करेंगे, तो वहां भी आपको इस तरीके कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशन आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बट वो आपको सारी मैट्रिक्सेस दे देगा। जैसे अगर आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स देने चाहिए तो वो दे देगा आपको कि उसकी कोवेरियंस मैट्रिक्स क्या है आपकी, सही है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर की वैल्यूज दे देगा, आपको सारी चीज दे देगा। सो this arrange that one only linear transform between features and principal component using the eigenvectors for a single data point from the IRIX database। Here they describe the calculation without using any linear algebra और some कुछ भी नहीं। ये पीसी हमको निकालना है, कहाँ से निकालना है,
फीचर्स है, जो भी हमारे पास फीचर्स है। उसके लिए क्या करना है, हमारा ये पूरा एक कोवेरियंस मैट्रिक्स है। इस कोवेरियंस मैट्रिक्स को यूज करके हमको आइगन वेक्टर्स से निकालने, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर से निकालने हैं और फिर उनको पीसी में कन्वर्ट करना है। ये मैथमेटिकली इनसाइड होता है जिसके कंप्यूटर के अंदर। अगर हम अलग अलग करेंगे तो हर वेरिएबल्स के लिए हमें पहले कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। कोवेरियंस मैट्रिक्स जैसे क्या है कि ये आइगन वेक्टर्स है और इसके बीच का जो कॉम्बिनेशन 1 1, तो ये जो हमारे जो है, जो इनको मैं कह रहा था डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएंसेस होते हैं। जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोवेरिएंसेस होते हैं। फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे फिर हम फ्यूचर टू प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो हम जो पीसी वैल्यूज निकाल रहे हैं उसको हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पीसी जो होता है हमने बताया था कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फीचर्स का होता है। जो हमारे फीचर्स क्या है, जो हमारे ओल्ड डेटा पॉइंट्स हैं, यानी कि हमारा अगर हमने डेटा को फिट किया हुआ एक्सेल में तो हमारे जितने भी कॉलम्स हैं वो हमारे फीचर्स हैं। तो इस ये जो ये वैल्यू निकल के आ रहा है हर एक पॉइंट के साथ में कोवेरियंस और वेरियंस की मल्टीप्लिकेशन के साथ में आ रहे हैं। तो पहला पीसी हमारा क्या हो जाएगा, W1 के साथ में मल्टीप्लिकेशन ऑफ x1, फिर W12 के साथ में x2 का मल्टीप्लिकेशन, 3 के साथ में 4 के साथ में। तो ये इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, पीसीज निकालेंगे। ओके, तो ये पीसीज होंगे, हमको बस यही चाहिए होते हैं। तो ये इतने पीसी होंगे जितने हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स एज लिस्ट इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। अगर हमारे पास 4 वेरिएबल हैं तो 4 पीसीज होंगे, अगर 10 है तो 10 पीसीज होंगे, 20 है तो 20 होंगे, 100 है तो 100 पीसीज होंगे। मैक्सिमम मतलब कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम 100 पीसीज या 10 पीसीज हम निकाल सकते हैं। जितने फीचर्स होंगे उतने ही हम पीसीज निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओके, फिर उसके बाद में आता है कि पीसीज निकालिए, यानी जहां तक पीसी निकालने तक हमारा कुछ भी काम हुआ नहीं, रिडक्शन कुछ नहीं हुआ। जितने डेटा पॉइंट्स हमारे पास थे उतने ही पीसी हमारे पास आ गए, तो कोई डेटा हमारा रिडक्शन किसी तरीके का हुआ नहीं, यानी अभी हमें कोई भी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से कोई फायदा हुआ नहीं है। सही है। अब उसके लिए हमने आपको बताया था कि 2 मेथड, वी हैव 2 मेथड्स, या तो हम डायरेक्टली एलिमिनेशन कर दें फीचर्स का, या दूसरा हम क्या था कि फीचर्स एक्सट्रैक्शन कर लें। तो डायरेक्टली अगर हमको एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, हमको लग रहा है जो वेरिएबल लेस इंपॉर्टेंट है उनको हमने डायरेक्टली हटा दिया। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायरेक्टली हटाने से क्या फर्क पड़ेगा, किस चीज पे फर्क पड़ेगा, पीसीज की वैल्यू क्या है। अगर ये 2 वेरिएबल्स थे, इन 2 वेरिएबल्स का पूरा इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा पीसी वैल्यू निकालने के लिए। सही है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है जो हम लोग कह रहे थे कि मतलब जो मैंने पहले बताया था कि अगर हम डायरेक्ट एलिमिनेशन करेंगे तो हम उन वेरिएबल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम कुछ भी हमको नहीं मिलेगा। ओके ओके, सेकेंड है कि हम कुछ पीसीज को डिलीट कर दें जो हमारे नए वेरिएबल्स हैं, अदर बता रहे हैं, बट हम 2 डिलीट कर रहे हैं, फिर भी जो 2 हमारे हैं वो इसकी कुछ इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। सही है। तो स्टिल दे आर देयर, ओल्ड वेरिएबल्स का अभी भी कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे है। पहले वाले में क्या था, अगर एलिमिनेशन करने में, तो एलिमिनेशन करने के बाद फिर उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रह रहा था। ओके, तो इसमें से जो फीचर एक्सट्रैक्शन पार्ट है ये हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर होता है। यहाँ से ही हमारा पूरा समझो जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंस है या जो उसका बेनिफिट है वो हमको मिलना स्टार्ट होता है। नाउ कि हमको कौन से पीसीज को एलिमिनेट करना है या कौन से पीसीज को लेना है, सही है, या कितने को एक्सट्रैक्ट करना है, वो हम निकालेंगे। कि हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था कि वेरिएशन को देखना, कि जितने हमारे वेरिएबल हैं वो कितना वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारी मॉडलिंग के अंदर। सही है, जितना ज्यादा वेरिएशन को एक्सप्लेन करेंगे जितने वेरिएबल्स, उतना ही हमारा मॉडल बेटर होगा। सही है। तो 100% तो कितने करेंगे, सारे के सारे वेरिएबल्स करेंगे। सही है। बट यहाँ पे फिर हमारा होता है कि कट ऑफ पॉइंट कुछ होता है कि अगर हम कोई इन्वेस्टिगेटर ये डिसाइड कर ले कि अगर 80% भी वेरिएशन हमारा एक्सप्लेन हो गया कुछ वेरिएबल्स के जरिए तो उतने वेरिएबल ही हमारे लिए इनफ है, या 50% भी हो गया या 60% हो गया या 95% हो गया, उतने हम वेरिएबल्स ले लेंगे। तो अगर ये जो हमने वेरिएशन निकाला एक्सप्लेन्ड बाय द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ओनली पीसीज ओनली, तो 72% प्लस 22% प्लस 3% प्लस 0.1 भी परसेंट नहीं, एक तरीके 1% मान ली, तो टोटल अगर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 100%। बट अगर हम देखेंगे फर्स्ट 2 में ही अगर देखेंगे तो कितना पहुंच जाएगा, 95 के आसपास। तो अगर सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स हमारे 95% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो हम बाकी 2 को क्यों लेंगे।
यानी कि अगर 30 में से हमारे 5 वेरिएबल्स ही अगर 90 या 85% या 80% या वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो हम 30 को क्यों करेंगे। सही है, तो ये है, बस इतना ही हमको करना है, इतना डिसाइड। अब ये हमको डिसाइड कर दिया कि हमको सिर्फ 2 पीसीज लेना है। सही है, और 2 पीसीज जो है हमारा 95% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अब उसके बाद फिर यहां से हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाता है। इतना ही काम है प्रिंसिपल कंपोनेंट का एनालिसिस करने का। कोई अब यहाँ पे फिर हम फर्दर आगे कुछ बढ़ेंगे। 4 वेरिएबल्स, वी टेक 4। अगर हमको 4 पूरे लेना है तो हमको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4th में इसलिए हमको लग रहा है अरे 4 तो ले ही सकते हैं, क्योंकि 4 तो बहुत स्मॉल डेटा सेट है। अगर यही डेटा सेट में अगर 20 या 30 या 25 या 100 अगर वेरिएबल्स होंगे तब वहां कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है। सही है, यहाँ 4 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 में तो इवन 4 में अगर आप जब रिग्रेशन एनालिसिस भी करेंगे तो वहां पे पी वैल्यूज देख के ही आपको पता चल जाएगा किस चीज का। जैसे ये अभी अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा अगर 70% भी अगर एक्सप्लेनेशन हो गया तो इट्स इनफ, तो आपको एक ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। 1 2 ये कट ऑफ जो होगा इसका वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टिगेटर के ऊपर। सही है, पीसी ज्यादा नहीं होगी, पीसी टोटल देखिए वेरिएबिलिटी टोटल कितनी है 100% है, और ये टोटल 100% एक्सप्लेन्ड बाय द ऑल 4 वेरिएबल्स। किसी भी डेटा के अंदर जो जितनी भी वेरिएबिलिटी होती है वो सारे कुछ हर वेरिएबल अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है। सही, तो टोटल मिला के कितनी होगी 100 सारे वेरिएबल्स का अगर हम देखेंगे। बट उन सारे वेरिएबल्स में हमारा मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जा रहा है। सही है, हमारा प्रोसेसिंग बढ़ जा रहा है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग बढ़ जा रहा है, हर एक चीज बढ़ जा रही है। तो हम उसमें से फिर ये करते हैं कि अगर हमारा 80% वेरिएशन भी एक्सप्लेन हो जाता है मॉडल का और कुछ वेरिएबल से, तो हम उतने ही से सेटिस्फाई हो जाएंगे, है ना। कि भूख तो 4 रोटी की है, मतलब 2 रोटी से भी अगर काम चल जाएगा हमारा, अगर मिल जाए तो 2 ही हम खा के गुजारा कर लेंगे। तो जब गुजारा करना है तब उसके लिए है, अगर आपको पूरा फुल मतलब चाहिए तो आप पूरे फुल पे जाइए। सही है, ये चीज है। दूसरा स्क्रू प्लॉट भी सेम आपको, अगर इसी का जब स्क्रू प्लॉट करेंगे तो वो क्या करेगा, आपको डिक्लाइन में इस तरीके से जाएगा ऊपर से नीचे, मतलब वो आपको बताएगा कि कितना वेरिएबल्स जो है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे 4 वेरिएबल्स हैं तो हमने इसको काउंट कर लिया। यही अगर 40 50 या 100 वेरिएबल्स होंगे तो हर एक में हमको देखना थोड़ा वो लगेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे सीधा असेंडिंग ऑर्डर्स में रखा हुआ है। सपोज करिए जो ये वैल्यूज है ये अगर कहीं बीच में कहीं आ रही होती तो आप क्या करते, वो आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर करके तब आपको स्क्रू प्लेट क्या होगा, वो बताएगा कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आपके लिए इनफ हैं। ओके, डॉटेड लाइन होती है वो इस तरीके से, जिसे स्टार्ट होगा 1 के लिए, फिर ये ऐसे इस तरह का ऐसे चला जाएगा, तो वो आपको बता देगा सीधा कि कितने पॉइंट्स, वो हर पॉइंट डॉट में होगा। तो हर डॉट जो होगा वो एक पीसी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, पीसी वैल्यूज को। ओके, आइगन वैल्यूज देखिए इसको मैंने इसलिए नहीं यहाँ पे ज्यादा मेंशन करा, एक तो ये पूरा मैथमेटिकल थोड़ा सा है, दूसरा ये है कि इसकी हमको निकालने की जरूरत है नहीं। सही है, और मुझे बहुत ज्यादा इसका एक्सप्लेनेशन है भी पता भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिन से पढ़ा भी नहीं इसको, मुझे नहीं। बट क्योंकि हमको इसकी जरूरत यहाँ पे इसलिए पड़ रही थी क्योंकि ये थोड़ा मॉडिकल जब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम जो बना रहे हैं तो वहां पे हमको जरूरत पड़ रही है। जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि हमको इंडिपेंडेंट पीसीज हमको चाहिए हो रहे हैं, तो वहां के लिए हमको जरूरत पड़े वहां तक। इसके बाद में हमको इसकी कोई जरूरत है। अब इसे यहाँ के बाद में हमको क्या करना है, हमको 2 पीसीज मिल गए जो हमारा 95% वेरिएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर क्या, हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट